اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، آج میں آپ کے لیے جس ویڈیو کا ریویو لایا ہوں وہ 10 مئی یعنی کہ کچھ دیر پہلے 7-8 گھنٹے پہلے مریخ کا برج حمل میں آ جانا ہے۔ مریخ ایک شہزادہ ہے، ایک اپنی مرضی کرنے والا ستارہ ہے، اور اس کا موڈ شاہانہ ہے اور جابرانہ ہے، آتشی مزاج ہے، اور یہ برج حمل اپنے ہی گھر میں آ گیا ہے۔ تو یہ جو مریخ ہے یہ نظر بد کا ستارہ ہے۔ ہوائی ایشیا آسیب سے بچنے کے لیے یہ ستارہ ہے۔ یہ عزت، شہرت، بلندی مرتبہ کا ستارہ ہے۔ یہ کام کاج کی صلاحیت کو بڑھانے کا ستارہ ہے۔ یہ صحت، قوت و توانائی کا ستارہ ہے۔ یہ دشمنوں پر غلبہ کا ستارہ ہے اور دشمنوں کے شر سے بچنے کا ستارہ ہے۔ یہ جب اپنے ہی گھر مریخ میں ٹرانزٹ ہو گیا ہے تو اس سے تمام برجوں پر کیا اثرات پڑیں گے، تو سب سے پہلے ہم سرسری دیکھتے ہیں، پھر باری باری دیکھیں گے کہ کس پر کیا ہوتا ہے۔ جب یہ ٹرانزٹ ہوا ہے اس وقت سے آپ میں ایک جوش، ایک جذبہ، کچھ کر گزرنے کا جذبہ آپ میں جمع ہوگا۔ آپ پرجوش دکھائی دیتے ہیں۔ آپ جو بھی ہیں، جس ستارے جس برج سے آپ کو تعلق رکھتے ہیں، آپ اپنے میں یہ جوش، جذبہ اور یہ پاشن جو کہ آپ میں جمع نظر آتے ہیں، جرات مندی، جرات مندانہ اقدام، جرات مندانہ فیصلے اب سب کرتے نظر آتے ہیں۔ اب آپ ڈریں گے نہیں، جس قسم کا فیصلہ، جس قسم کا جرات مندانہ قدم ہو آپ اٹھائیں گے، جس قسم کی بولی ہو وہ آپ دیں گے، قول فعل تحریر تقریر میں آپ اعلیٰ سطح پر رہیں گے، جس برج سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں۔ ماضی میں جو آپ کو ہچکچاہٹ یا ڈر یا خوف تھے وہ اب نہیں رہیں گے، کیونکہ مریخ ایک شہزادہ، ایک ویگابانڈ، ایک لوفر، ایک ڈشکرا، یہ سمجھ لیں کہ بیٹا، وہ اب سڑک پر یعنی کہ مین روڈ پر چڑھ چکا ہے۔ اب تو وہ دوڑ لگائے گا، ریس دے گا۔ آپ کو جہاں آپ کی کام کاج کرنے کی صلاحیت، فیصلے، جرات مندہ اقدامات بڑھ رہے ہیں، وہاں آپ کے حاسدین، دشمن تمام برجوں کے، وہ آپ کی یہ ترقی، یہ رفتار برداشت نہ کرتے ہوئے وہ آپ کی روایتی عادتوں یعنی غصہ دلا کر، آپ کو غم دلا کر، آپ کے جھگڑے کروا کر، آپ کے قول فعل تحریر تقریر میں صبر نہ کرا کر آپ کے خلاف سازشیں، پراپاگنڈا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس گولڈن ٹائم سے فائدہ نہ اٹھایا، صبر تحمل نہ کیا، تو تمام برج والوں پر کیس مقدمات نظر آتے ہیں، ایک دوسرے پر آپ کیس مقدمات کر سکتے ہیں۔ سوچ میں، عقل میں تیزی اور بہتری آئے گی۔ ہر کام کرنے والا اپنے کام میں تیزی پائے گا، اس سے فتح، کامیابی کا پھل ملتا نظر آتا ہے اس ٹرانزٹ سے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے برج حمل میں آئے گا۔ تو برج حمل کے ہم ایسے سرسری دیکھ دیتے ہیں، پھر بعد میں تفصیل دیں۔ برج حمل کے شخصیت کے خانے میں آئے گا، یعنی خانہ نمبر 1 میں، زیچے کے مطابق۔ زیچہ کیا ہوتا ہے، زیچہ بھی میں آپ کو دکھا دوں کہ ہم زیچہ بناتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ زیچہ ہوتا ہے، اور زیچے کے یہ خانہ نمبر 1 میں آئے گا۔ تو یہ خانے ہوتے ہیں اس کے، یعنی کہ 1 2 3 4، جیسے یہ 8 ہے، پھر اس کے آگے 9 ہوگا، پھر 10، ایسے 1 سے لے کر 12 خانے ہوتے ہیں۔ تو یہ زیچے کے خانہ نمبر یہ جو ہے نا 1 میں، یہ جو ہے نا لگے گا، 1 میں آ جائے گا۔ تو 1 میں جب آئے گا تو اس کی شخصیت کے خانے میں آئے گا۔
तो इसके शख्सियत के खाने में आएगा, सौर के खाना नंबर 12 में आएगा, और फिर जो है ना जोला के जो है ना 11 नंबर में आएगा, और सरतान के 10 नंबर में, असद के 9 नंबर में, सुबला के 8 नंबर में, मीज़ान के 7 नंबर में, अकरब के 6 में, कौस के 5 में, जद्दी के 4 में, दिल्लू के 3 में और हौत के खाना नंबर 2 में ये ट्रांजैक्शन होगी। इस ट्रांजैक्शन से अब इनको क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा वो देखते हैं। बुर्ज हम्मद वाले, इनके शख्सियत के में घर में आने, इनकी शख्सियत के घर खाना नंबर 1 में आने से इनकी शख्सियत हैसियत में इजाफा होगा। लोग आपकी मकान की कशिश से मुतासर हुए बगैर ना रह सकेंगे। आप महफिलों में, समाजी, सियासी, इक़्तिसादी सरगर्मियों में हिस्सा लेते नजर आते हैं और आप समाजी सरगर्मियों की जान नजर आते हैं। आप पर इत्मीनान नजर आते हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस आप में तकब्बुर, गुरूर पैदा कर देगा, जिससे आपके झगड़े हो सकते हैं। रिश्तों में मोहब्बत, इत्तेहाद, सुकून नजर आता है। माँ बाप, बहन भाइयों में मोहब्बत बढ़ेगी। आपकी वो मदद भी करेंगे और माली मदद भी करेंगे, और जो ना काम काज में भी आपकी मदद करते दिखाई दें। शादी, मंगनी ये आपकी हो सकती है, और शादीशुदा लोग भी जो है ना वो लड़ाई झगड़ों में पड़ सकते हैं। शिराकती कारोबारी दोस्त भी लड़ाई झगड़ों में पड़ सकते हैं। इसलिए अगर राज़ीनामे की तरफ ही तवज्जो देना, बुर्ज हम्मद अगर राज़ीनामे की तरफ तवज्जो ना दिए तो आपके मामलात आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ये वक्त अच्छा है। इसलिए अगर आपका कोई लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है मियाँ बीवी के साथ, शिराकती कारोबार दोस्तों के साथ, तो आप राज़ीनामा कर सकते हैं। अब बुर्ज सौर के खाना नंबर 12 पर लगने से बुर्ज सौर के खुफिया दुश्मनों की कार्रवाइयाँ आपके खिलाफ अरूज पर चली जाएंगी, लेकिन आपके इस तरह एमिग्रेशन के मसाइल, यानी आप बैरून मुल्क में रहते हैं तो वहाँ से आपको जो है ना आपके मसाइल अगर एमिग्रेशन के कोई वीज़ा काम करेंगे तो वो हल होते नज़र आते हैं। इसके अलावा गैर मुल्क अगर कोई जाना चाहते हैं तो उसकी ख्वाहिश पूरी होगी। बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्म भी कामयाब नजर आते हैं। मेहनत से और कुछ अखराजात करके आप गैर मुल्क जा सकते हैं। आप एक मुनज़्ज़म और एक लीडर की हैसियत से सामने आ सकते हैं। आप अपने अखराजात पर कंट्रोल करने, वरना सब बर्बाद कर बैठोगे। बुर्ज जोज़ा, बुर्ज जोज़ा के खाना नंबर 11 पर लगने से काम कारोबार में नुकसान बंद होंगे। रिश्तों में, दोस्तों में जो नफरत और दूरी थी वो ख़त्म होगी। कारोबारी फ़वायद बढ़ेंगे। ख्वाहिशात दिल जो दम तोड़ चुकी थी अब पूरी होती नज़र आती हैं। इल्म और अक्ल की वजह से काफ़ी दौलत पास आती नज़र आती है। सर्विस वालों की तरक्की हो सकती है। अगर आपकी किसी काम के इंतज़ार में थे कि ऐसा हो जाए तो अब वो काम आपका होता नज़र आता है। शादीशुदा ज़िंदगी और मोहब्बत के रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। वो लोग जो मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं यहाँ इजहार करेंगे, उधर मंगनी शादी इनकी हो जाएगी। का होते नजर आते हैं। कारोबार या जारी कारोबार में आप सरमाया लगा सकते हैं। जोज़ा बुर्ज वाले एहतियात करना, अपने फ़राइज़ मनसबी पर तवज्जो देना, वरना आप डिग्रेस भी हो सकते हैं और आपको सर दर्द, आधे सर दर्द की बीमारी, गुर्दों की बीमारी आ सकती है। सेहत के बारे में बहुत एहतियात करना। जी, सरतान बुर्ज वाले, सरतान बुर्ज वालों के खाना नंबर 10 पर लगने से तो सरतान बुर्ज वालों को कारोबारी लिहाज से बहुत एहतियात करना चाहिए। इनका कारोबार बेहतरी की तरफ आएगा। कारोबारी एतबार किसी पर ना करें। कारोबार तब जाकर इनका फले फूलेगा जब कारोबारी एतबार किसी पर नहीं करेंगे। आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती नजर आती है। अगर आपने अपने कॉल फैल तहरीर तकरीर में एहतियात ना किया तो फिर आपकी कारोबारी क्रेडिबिलिटी ज़मीन पर आकर गिरेगी। आप मेहनत कुछ मांगते हैं, काम आपके मेहनत आपको करना पड़ेगी, फिर आपको मेहनत का फल मिलता दिखाई देता है। आपका काम कारोबार, नया कारोबार भी आप कर सकते हैं। कारोबारी मुआहदात भी हो सकते हैं। जारी कारोबार में सरमाया भी लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा ट्रांजैक्ट है आपके लिए कारोबार के लिहाज से। जी, बुर्ज सुंबला के खाना नंबर 8 पर लगने से बुर्ज सुंबला के जिंदगी मौत इंश्योरेंस क्लेम, माली मुआहदात, कर्ज हसूली वसूली, अदायगी कर्ज और जो न विरासत के मामलात ये हल होते दिखाई देते हैं। सुंबला बुर्ज वालों को जिस चीज़ का एहतियात करना चाहिए, जिसके ये उलट जा रही है वो जो है ना इनकी एक सेहत
दूसरा जो है ना, इनके सोशल रेस्पेक्ट्स वैल्यू, यानी ताल्लुकात समाजी, उनमें ये एहतियात करें, गम और गुस्सा से परहेज करें, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें। अगर इन्होंने सब्र तहम्मुल ना किया तो मुख्तलिफ लोगों के साथ इनकी लड़ाई झगड़ा होता दिखाई देता है। अब असद बुर्ज वाले, हाँ असद बुर्ज वाले, असद बुर्ज वालों को तो भूल गए थे हम। असद बुर्ज वाले, इनके खाना नंबर 9 पर लगना है। बैरून मुल्क जाना, बैरून मुल्क हज ज़ियारत, इनके रास्ते खुले होंगे। बैरून मुल्क कारोबार अगर करना चाहते हैं तो वो भी खुले होंगे। एक मुल्क से दूसरे मुल्क आप हिजरत चाहते हैं तो वो भी आपकी खुली होगी। असद बुर्ज के खाना नंबर 9 पर लग रहा है, तो ये ट्रांजिट असद बुर्ज के खाना नंबर 9 पर। तो खाना नंबर 9 किसी के बैरून मुल्क जाना, बैरून मुल्क मफादात, बैरून मुल्क कारोबार, बैरून मुल्क हिजरत, वीज़ा अकामा लेने के लिए ये अच्छा वक्त है। असद बुर्ज वाले जा सकते हैं, बैरून मुल्क कारोबार भी कर सकते हैं। हज ज़ियारत, मकामात मुक़द्दसात, तालीमी, सियासी, इक़्तिसादी, मुआशी सफ़रों में इनको कामयाबी मिलेगी और दूसरे मुल्क आप ये अपना कारोबार भी सेट कर सकते हैं। बुर्ज सुंबला, उसके खाना नंबर 8 पर लगेगा, जिसकी तफसील मैं पीछे बता चुका हूँ कि इनकी ज़िंदगी मौत, इंश्योरेंस क्लेम, मुकदमात, विरासत के मुकदमात भी इनके हक में होते दिखाई देते हैं। इनके जो ना जो डूब चुकी थी रकम वो भी वसूल हो सकती है। कर्ज की हसूली लेना चाहें, वसूली अगर लेना, कर्ज लेना चाहे, वसूली अगर वसूल करना चाहें, अदायगी अगर कर्ज है अदा करना चाहे, तो इसमें इनको रास्ते खुले मिलेंगे। और इसके अलावा जो सुंबले बुर्ज वाले हैं वो एहतियात करना चाहिए उनको सेहत का और लोगों के साथ डीलिंग और मामलात का। अपने आप को पार्शल ना करें, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदारों पर अगर कोई खर्च आता है तो करें, वरना वो इनसे नाराज होकर इनके लिए बुरे दिन आ सकते हैं। मीज़ान बुर्ज, मीज़ान बुर्ज के खाना नंबर 7 पर लगने से अपना मियाँ बीवी, निकाह, शादी, समाजी तकरीबात और शिराकती कारोबारी दोस्त, इनमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। शिराकती कारोबार में फ़ायदा है। कई एक शिराकती मुआहदात जन्म लेंगे इस दौरान, तो वो आपको आगे जाकर काफ़ी फ़ायदा देते नज़र आते हैं। मियाँ बीवी के दरमियान अगर लड़ाई झगड़े, अदालत, कचहरी, पंचायत और यानी तलाक की नौबत तक पहुँच चुके तो वे भी हल होते नज़र आते हैं। अकरब बुर्ज के खाना नंबर 6 पर लगने से अकरब बुर्ज के मर्ज में इजाफा हो सकता है, ये बीमार हो सकते हैं। मैदे की बीमारी, ENT का मसला, गुर्दा मसाना का मसला आ सकता है। हाँ, अगर वो इस दौरान मंगल को अगर कोई अपना इलाज कराना चाहें तो मंगल वाला दिन इनके लिए बहुत बेहतर है, वरना जो है ना ये गोश्त का सदका मंगल वाले दिन, ताकि बीमारियों से बचे रहें। फ़राइज़ मनसबी पर अपना अकरब वाले तवज्जो दें। अगर फ़राइज़ मनसबी पर तवज्जो ना दी तो इनको नौकरी से डिग्रेस हो सकते हैं। अगर इन्होंने फ़राइज़ मनसबी पर तवज्जो दी तो इनका काम कारोबार भी बुलंदी पर जाएगा और इनकी तरक्की भी इनको मिलती नज़र आती है। और सेहत के बारे में अगर सेहत के असूलों को मद्देनज़र रखा गया, हल्की वर्जिश, मुतवाज़िन ग़िज़ा, तो सेहत का मसला भी इनका हल हो सकता है। कौस बुर्ज वाले, कौस बुर्ज के खाना नंबर 5 पर लगने से इनकी मंगनी, शादी, औलाद के मामलात हल होते नज़र आते हैं। औलाद की जाब, मंगनी, शादी ये होती नज़र आती है। इसके अलावा बे औलाद को औलाद हो सकती है। और इनके सट्टा, जुआ, अंदाज़ा, प्राइज बॉन्ड, लॉटरी के कामों में इनको मुफ्त दौलत हाथ लग सकती है। कोई प्राइज बॉन्ड, लॉटरी इस दौरान लग सकती है। मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है कौस बुर्ज को। और इनको औलाद की खुशियाँ नसीब होंगी। बे औलाद को औलाद होती नज़र आती है। जद्दी के खाना नंबर 4 पर लगने से जद्दी बुर्ज वालों के खानदान, जायदाद, सवारी, ज़राअत, मकान, प्लाट, इनमें जो है ना ये फ़ायदा देगा। हाँ, अगर इनके हादसे का भी खतरा है, सवारी चोरी होने का भी खतरा है, इसलिए इस सवारी के बारे में एहतियात करें। नई सवारी भी ये ख़रीद सकते हैं, लेकिन किस्तों पर ना करें। खरीदें, अगर किस्तों पर खरीदेगी तो सवारी इनके लिए वबाल जान बढ़ जाएगी, कर्ज इनके लिए मर्ज साबित होगा। सूद की दलदल में ये फंसते नज़र आते हैं, सवारी ना लें। बाकी जायदाद, अपना मकान अपना लेना चाहते हैं ले सकते हैं। किराए के मकान से घर में आ सकते हैं। और ज़राअत, बाग, फल फूल इनका ज़्यादा लगाएगा। इनके बाग को, फसल को तेला लग सकता है, जिससे इनको बर वक्त स्प्रे करना, पानी देना ज़रूरी है। दिल्लू बुर्ज के खाना नंबर 3 पर लगने से अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार, ये सब कंट्रोल में होंगे, आपका साथ देते नज़र आते हैं। और इसके बाद जो है बहन भाई भी आपका साथ देते नज़र आते हैं। अल्लाह ताला की रहमत से आप पर हादसे के खतरात ख़त्म रहेंगे। फिर भी आप जो है ना गाड़ी एहतियात से चलाना।
अंदरून मुल्क सियासी समाजी इक्तसादी सफ़र कामयाब नजर आते हैं। तालीम हासिल करने वाले, प्राइमरी तालीम हासिल करने वाले, इब्तदाई हुनर सीखने वालों के लिए भी ये कामयाबी है। हाउस बोर्ड के खाना नंबर 2, दौलत पर लगने से इनके ज़राए आमदनी बढ़ेंगे। दौलत ही दौलत पास आती नजर आती है। हाउस बोर्ड वालों के वारे न्यारे हो रहे हैं, इनको के पास काफ़ी पैसा आता नजर आता है। इसलिए ये हाउस बोर्ड वाले शरीफ बंदे होते हैं। किसी पर माली एतबार हाउस बोर्ड वाले ना करना। अगर कोई कारोबार है तो अपने इन हैंड करना, जो मुनाफा आ रहा है अपने पास रखना और किसी के साथ शेयर ना करना, ताकि और किसी के साथ कारोबारी शिराकत दारी भी ना करना। एक नसीहत है सब बुर्जों को, जद्दी बुर्ज वाले, हाउस बुर्ज वाले, सुंबला बुर्ज वाले, मीज़ान बुर्ज वाले और जोधा बुर्ज वाले, खास तौर पर ये किसी के साथ कारोबारी शिराकत दारी ना करें। ये सीधे साधे लोग होते हैं, शिराकत दार इनको जलील और बर्बाद कर देते हैं और ये इनके माल पैसे खा जाते हैं। इसलिए कोई भी कारोबार करो बुर्ज मिलाकर करो, तब भी ये छोटे बुर्ज वाले किसी के साथ कारोबार ना करें, अपना इन हैंड कारोबार करें। रही बात इसको मजीद अच्छा करने के लिए आप जो है ना हफ्ते वाले दिन या गनी 1060 बार पढ़ें, और इतवार वाले दिन या फतह 499 मरतबा, सोमवार वाले दिन या लतीफ़ 129 मरतबा, मंगलवार वाले दिन या काबिल 903 बार, बुध वाले दिन या मतालु 541 बार, जुमेरात वाले दिन या रज़ा को 308 बार, जुमे वाले दिन या नूरो 256 बार। अगर कोई निकम्मा है नहीं पढ़ सकता तो फिर वो ये सदके करे। दाल मूंगी, दाल मसरी, बाजरा, चावल, टोटा, सूरजमुखी, तो और जो है ना इन 5 चीज़ों को मिलाकर हर रोज़ थोड़ा सा इतना चौंटी मकोड़ों को सदका कर दें, तो इनका ये टाइम ग्राइंड ऑफ ग्राइंड हो जाएगा, यानी टॉप ऑफ दी टॉप हो जाएगा और इनको किसी रिज्जत का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि बरकत और रहमत के समंदर को अपनी तरफ लपेटेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।